شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یقیناً آج پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کے ہر شہری کے لیے بڑے خوشی، بڑے فخر اور بڑے اعتماد کا موقع ہے. جناب اسپیکر، بالکل صحیح. جناب اسپیکر، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ آج پاکستان کے ہر شہری کے لیے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، مذہب سے ہو، فرقے سے ہو، سوچ سے ہو، لیکن خدا کے فضل و کرم سے آج ایک بڑا عظیم دن ہے جس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی سے سرفراز کیا. جناب اسپیکر، قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ وہ نہ صرف مشکل ترین حالات میں سرخرو ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے تو وہ مشکل ترین معاملات بھی جو ہیں وہ آسانی میں بدل جاتے ہیں. یہ معجزہ ہوا اور یقیناً اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے. آج پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ بڑا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعتماد اس کے جو ہے وہ ذہن میں اور دل میں پیدا ہوا ہے. پاکستان کی یہ کامیابی، جبکہ دنیا جو ساری دنیا ایک عجیب قسم کی کیفیت سے دوچار تھی، پوری دنیا میں ایک غیر یقینی کی کیفیت تھی، پوری دنیا میں ایک جنگی ماحول تھا، پوری دنیا کا ہر باشندہ جو تھا وہ ڈسٹرب تھا، اس کے معمولات بدل چکے تھے. جناب اسپیکر، بہت بڑے کارخانے دار سے لے کے ایک عام دیہڑی دار تک جو تھا وہ اس سے متاثر ہو رہا تھا. اسکول کے بچے اس سے متاثر ہو رہے تھے. ہر انسان کا روزمرہ کی زندگی جو تھی وہ اس کی متاثر تھی، خواہ وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی بس رہا تھا. کیونکہ آج کل کا جو زمانے کی یہ جنگ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دو متحارب ممالک کے ہی جو معاملات جو ہیں وہ الجھیں، بلکہ پوری دنیا کے حالات اس سے متاثر ہوتے ہیں اور بڑا سنگین معاملہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ ڈیڈ لائن آ چکی تھی اور اس کے بعد کیا ہونے والا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا اور میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پوری حکومت کو، ہر جماعت کو، پوری اپوزیشن کو، ہر پاکستانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ سہرا جو تھا وہ پاکستان کے سر سجا. اور آج پوری دنیا کا ہر باشندہ جو ہے اس کے نام پر، اس کے زبان پر جو نام ہے وہ پاکستان کا ہے، کہ پاکستان نے دنیا کو اس جنگ سے بچانے کے لیے اپنی بھرپور سعی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب و کامران کیا. جناب اسپیکر، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا. جناب اسپیکر، یہ بہت مشکل مرحلہ تھا. میں اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہوگی، کتنی ارکریزی ہوئی ہوگی، کتنی کاوش ہوئی ہوگی، تب جا کر یہ معاملہ یہاں تک پہنچا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کامیابی حاصل نہ ہوتی، پاکستان اس میں کامیاب نہ ہوتا، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا یا ہو گیا ہوتا وہ اتنا بڑا نقصان ہوتا، وہ اتنا بڑا ضیاع ہوتا انسانیت کا کہ پھر شاید برسوں صدیوں جو ہے اس کا کوئی ازالہ نہ کر سکتا. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کو جو عزت ملی ہے، اس پہ نہ صرف ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات کی
जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने, जो बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, कि इस वक्त को हमें पाकिस्तान की यकजहती के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की मज़ीद इज़्ज़त और वक़ार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और देखें, ये कोऑर्डिनेशन जिसकी बात हमारे वज़ीर दफ़ा ने की, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि हुकूमत वक्त और जो हमारी अस्करी क़यादत है उसमें जो हम आगे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी मांगी से, उनकी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, वो हर पाकिस्तानी की इज़्ज़त है। आज अगर कहीं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी की इज़्ज़त है, खाए वो इस तरफ बैठा हुआ है या डिवाइड के दूसरी तरफ बैठा हुआ है। आज अगर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को इज़्ज़त और वक़ार की से देखा जाता है या उनका नाम लिया जाता है तो ये हर पाकिस्तान की इज़्ज़त है, हर पाकिस्तानी के लिए काबिल मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त और एहतराम बात है, जिस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जनाब स्पीकर, हमारे आपस में 100 इख्तलाफात हो सकते, कौन सा मुल्क है जहां इख्तलाफात नहीं होते, लेकिन जहां मुल्क की बात हो फिर वहां हमें यक ज़बान होना है, यक जान होना है, यक सोच होना है। देखिए, मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि क्या ईरान में जब बम गिर रहे थे, जब तबाही हो रही थी, तो वहां भी हुकूमत भी थी और उसकी अपोजिशन भी थी। जब लेबनान में ये तबाही और बर्बादी हो रही थी तो वहां हुकूमत भी थी और अपोजिशन भी थी। इवन जिस वक्त फ़लस्तीन में ये सब कुछ हो रहा था जनाब स्पीकर, वहां भी हुकूमत भी थी और उसकी अपोजिशन भी थी। क्या वो जो बम गिर रहे थे वो खाली हुकूमत पे गिर रहे थे? वो तो उस वक्त फ़लस्तीन पे गिर रहे थे, लेबनान पे गिर रहे थे, ईरान पे गिर रहे थे। उस पर ना कोई हुकूमत का फ़र्क था ना अपोजिशन का फ़र्क था। तो इसलिए जब कोई मुश्किल या कड़ा वक्त आ जाता है कौमों के ऊपर तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जितनी किसी में ज़्यादा हम मांगी और सोच की यकजहती होगी, वो माशरा भी तरक्की करता है, वो मुल्क भी तरक्की करता है, वो मुकाबले में भी सुरखरू होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतरीन डिप्लोमेसी हुई, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी मुल्क। हकीकत ये है कि ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी बड़ा अच्छी बात की लीडर ऑफ द अपोजिशन है। कौन होगा बदनसीब जो कहेगा कि उसको खुशी नहीं है कि उसका मुल्क सुरखरू हुआ है, उसके मुल्क को इतनी इज्जत और वक़ार मिला है, उसका मुल्क जो है वो उसकी आज जगह जगह बात हो रही है, अच्छाई की बात हो रही है, उसकी अहमियत की बात हो रही है, उसकी इम्पोर्टेंस की बात हो रही है। तो हर पाकिस्तानी खुश है जनाब स्पीकर, और हमें यह समझना भी चाहिए दिल से, किसी पर शक भी नहीं करना चाहिए, हर पाकिस्तानी खुश है। और इसी कुव्वत को अब चैनलाइज करने की जरूरत है। देखिए, जुमे वाले दिन यहां पर पाकिस्तान को जो इज्जत मिलेगी कि इतना दुनिया का एक बहुत बड़ा फैसला, एक बड़े नाजुक वक्त पर वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अल्लाह करे वो फैसला कामयाब हो, अल्लाह ताला करे कि ये ऐसा जो है वो रिजल्ट सामने आए जिसमें पाकिस्तान की मज़ीद इज्जत और तौकीर मिले। और सच बात तो ये है जनाब स्पीकर कि ये नाजुक मामले की मैं बात इसलिए करता हूँ कि देखें, पाकिस्तान एक हमारा पड़ोसी मुल्क जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया, ईरान, सऊदी अरब हमारा ख़ास बरादर मुल्क, बहुत अच्छे तल्कात, UAE देखें, लेबनान देखें, जितने खलीजी ममालिक उनको देखें। पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि खुदा के फजलो करम से, बहुत दानिशमंदी से, बड़ी अक्ल से, बड़ी फरासत से, बड़े तजर्बे से, बड़े हिकमत अमली से अपनी पोजीशन को ऐसे रख के इतने बड़े निज़ाम तक पहुँचना जो है, ये सच बात तो ये है कि जहाँ मैं पूरी हुकूमत को मुबारकबाद दूंगा
वज़ीर आज़म साहब को दूंगा, फील्ड मार्शल साहब को दूंगा, हर पाकिस्तानी को दूंगा। वहाँ अल्लाह का भी लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार ने ये मौका दिया कि पाकिस्तान सुरखरू हुआ है। हमें छोटी मोटी बातें ख़त्म करनी चाहिए। और आज मैं अपोजिशन को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जो बातें हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने की हैं कि आज पाकिस्तान मेज़बान है हम, आज हमारे में कोई तफरीक नहीं है। अगर कोई हमारे मामलात हैं तो हम करते रहें, लेकिन वो मामलात ऐसे नहीं है खुदा ना खास्ता हम आपस में तो एक दूसरे के साथ मुखालफत कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ तो कोई मुखालिफ नहीं है। जितना यहाँ कोई मुहिब वतन इधर बैठा है, इतना ही मुहिब वतन उधर बैठा है। और ये खुशाइंद बात है। और मैं इसलिए जनाब अपनी अपोजिशन के उस तरफ जो बैठे हुए हमारे ऑनरेबल मेंबरान हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जिस जज्बे का इजहार किया और आपने जिस दानिशमंदी के साथ और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, उस पर आपको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के तमाम तबकों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और उन्होंने मुश्किल वक्त में देखे, महंगाई हो गई, तेल की कीमतें बढ़ गई, किस मुल्क में नहीं बढ़ी। ठीक है, अपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत पर करे, हमने भी जो करना चाहते थे वो कहने की कोशिश की। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इस जज्बे के साथ जो आज मोहब्बत और पाकिस्तान के साथ एक इश्क का जज्बा मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे खून में है पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठा हुआ और जो भाई पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी आपकी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान है तो हम सब कुछ है। लेकिन जहां ऑस्टेरिटी जो है ना वो गवर्नमेंट ने करनी है। असल ऑस्टेरिटी ये है कि वॉलंटरीली 25 करोड़ लोग जो हैं वो भी इसकी ऑस्टेरिटी करें कि कहें कि हमारे मुल्क पर कड़ा वक्त आया है, हमारे पास अगर किसी चीज़ की कमी है, किसी की कीमत बढ़ गई है तो हम अपने मामूलात को उस लिहाज से एडजस्ट करें। ये जो है ये हमें एक पैगाम देना है। और पैगाम कहाँ से दिया जाएगा? इस हाउस से। ये सुप्रीम है। मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन से इत्फाक करता हूं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ये मंबा है, ये दानिशगाह है 25 करोड़ लोगों की। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि वतन है तो हम सब हैं, मुल्क है तो हम सब हैं। हम आपस में उलझें, सियासी तौर पर उलझें, लेकिन इस तरह ना उलझें कि उससे मुल्क के नाम पर कोई धब्बा आ जाए या मुल्क कमज़ोर होने का कोई शाइबा हमारे सामने कोई आए, या हम अपने जो इदारे हैं उन पर हमला आवर हो जाएं। ये नहीं करना है, ना वो हमारे लिए जायज़ है, ना आपके लिए, ना किसी के लिए। आप नहायत काबिल एहतराम है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये हाउस मुकम्मल इसलिए है कि अपोजिशन बैठी हुई। अगर आप ना हो तो अपोजिशन, फिर ये हाउस कैसे चलेगी? और आज आपने जो जज्बा दिखाया है, अल्लाह ताला करे कि ये जज्बा हमेशा कायम और दायम रहे और पाकिस्तान तरक्की करे। एक दफ़ा जनाब स्पीकर में फिर आज के दिन के हवाले से जो अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है, वज़ीर आज़म जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब को, हमारे जो सिपा सालार हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अपने सदर ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। आप इस पार्लियामेंट के कस्टोडियन हैं, मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह ताला ने हम सब पर बड़ा करम किया, पूरे पाकिस्तान पर करम किया। पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, हम सब हैं। इसकी हिफाजत जो है वो किसी एक का काम नहीं है, 25 करोड़ लोगों की ये अमानत है। अल्लाह ताला हमेशा आइंदा भी हमें सुरखरू करे। अल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।